Hello students, welcome to my channel. Today I'll start exercise 3.3 of class 12th. So question number 1 says that find the transpose of each of the following matrices. So this is the third part of question number 1. This is 3 cross 3 order matrix and we have to find the transpose of this matrix. So what we have to do to find the transpose of this matrix, rows are converted into the columns. So this row 1, row 2 and row 3 converted into the column 1, column 2 and column 3. Let's see. Minus 1, 5 and 6. Minus 1, 5 and 6. This is converted into the column 1. This row 2, root 3, 5, 6. Root 3, 5, 6 converted into the column 2. 2, 3, minus 1. This row 3 converted into the column 3, 2, 3, minus 1, and this is the required transpose of this matrix. Okay, so move on to the question number 2. If A is 3 cross 3 order matrices and B is also 3 cross 3 order matrices, then verifies that second part A minus B whole transpose is equals to A transpose minus B transpose. Okay, so first of all, if we taking left hand side, we have to find A minus B. Okay, so A minus B is minus 1 minus 1 minus of minus 4, that means minus 1 plus 4, that gives 3. 2 minus 1, that is 1. 3 minus minus plus 5, that is 8, and you have to find the A minus B matrices. Whole transpose, that means this row 1 converted into the column 1, this row 2 converted into the column 2, this row 3 converted into the column 3, and this is A minus B whole transpose. Okay, so move on to the right hand side. So right hand side is A transpose minus B transpose. So A transpose is this row 1 converted into the column 1, this row 2 and row 3 converted into the column 2 and column 3. Okay, so this gives us this 3 cross 3 order matrix, which is the A transpose, and minus B transpose means this row 1, row 2 and row 3 converted into the column 1, column 2 and column 3. Okay, so subtract this. Minus 1 minus minus plus 4, that means minus 1 plus 4, that gives 3. 5 minus 1, that gives us 4. Minus 2 minus 1, that gives us minus 3, and whole you find it. Okay, so this is equal to the left hand side, hence proof we get the required result. So move on to the question number 3. If A transpose is equals to this matrix, this is 3 cross 2 order, and B is equals to this matrix, which is 2 cross 3 order, then verify that second part is A minus B whole transpose is equals to A transpose minus B transpose. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें क्या चाहिए, A माइनस बी, दैट मीन्स मैट्रिक्स A चाहिए और B चाहिए, एंड वी हैव मैट्रिक्स B बट नॉट मैट्रिक्स A. वी हैव द मैट्रिक्स A ट्रांसपोज. सो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर हम फाइंड करेंगे, वी गेट A. तो इसका अगेन ट्रांसपोज करोगे, यू गेट द मैट्रिक्स A. सो दिस रो 1, रो 2 एंड रो 3 converted into the column 1, column 2 and column 3. This is the A matrix. Minus minus B is given this matrix, this as it is, and subtract 3 minus minus plus 1 gives 4, minus 1 minus 2 minus 3, 0 minus 1, that is minus 1. Okay, 3, 0 and minus 1, 2, similarly you get the value. Okay, so this is A minus B, and we have to find A minus B whole transpose. So this again row 1 and row 2 converted into the column 1 and column 2, and you get the A minus B whole transpose. Okay, so move on to the right hand side, and right hand side is A transpose minus B transpose. A transpose you have given this, okay, and B transpose is this row 1 and row 2 converted into the column 1 and column 2. So subtract easily and you get 4, 3, minus 3, 0, minus 3, minus 2, which is equals to the left hand side, hence proof we get the required result. Okay. So move on to the question number 4. If A transpose is equals to this 2 cross 2 order matrix and B is equals to this 2 cross 2 order matrix, then find A plus B 2B whole transpose. Okay. इसके देखो दो मेथड है सॉल्व करने के. एक तो सबसे पहले प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, A प्लस बी होल ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं, A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. ओके, सबसे पहले इस मेथड से करते हैं. देखो A ट्रांसपोज प्लस 2B होल ट्रांसपोज. ओके, दिस इज A ट्रांसपोज, एंड देखो ये कैसे फॉर्मेट बन रहा है, K A होल ट्रांसपोज. तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या थी, K A ट्रांसपोज. तो 2 तो बाहर आ जाएगा और B का ट्रांसपोज हो जाएगा.
सेम वे देखो ए ट्रांसपोज आपको यहाँ पे गिवन है, ये पुट कर दिया +2 और बी ट्रांसपोज आप निकाल सकते हो दिस रो 1 एंड रो 2 कन्वर्टेड इनटू द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड यू गेट दिस, ये वाली मैट्रिक्स सेम एज इट इज़ है और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करिए हर एक एलिमेंट के साथ, देखो -2 हो जाएगा यहाँ पे 2 × 1 2, 2 की इंटू 0 से करेंगे 0, 2 2 4, ओके। सिंपली आप ऐड करोगे यू गेट -4 5 1 एंड 6, ओके। एक तरीका और क्या है, देखो जब यहाँ पे क्या चाहिए a+2b होल ट्रांसपोज है, तो देखो सबसे पहले आप a को इसको a डैश को मतलब ट्रांसपोज को आप कन्वर्ट कर सकते हो a मैट्रिक्स में, दिस रो 1 एंड रो 2 कन्वर्टेड इनटू द कॉलम 1 कॉलम 2 एंड यू गेट द मैट्रिक्स a +2 b मैट्रिक्स आपको यहाँ पे गिवन है, a+2b मैट्रिक्स निकालो और उसका ट्रांसपोज निकाल दो, ओके। वो भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, ओके। So move on to the question number 5. For the matrices A and B, verify that AB whole transpose is equals to B transpose A transpose, where second part is A matrix given है, B matrix भी given है। For A matrix किस ऑर्डर की है, 3x1 ऑर्डर की और B matrix 1x3 ऑर्डर की। देखो रो 1 और कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम्स, और यहाँ पे कितनी रोज है, 3 रोज एंड 1 कॉलम, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है सबसे पहले। लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या चाहिए हमें, A इंटू बी, ए और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम एंट्री और सेकंड मैट्रिक्स की रो एंट्री क्या होगी, सेम। देखो यहाँ पे सेम है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, वो 3x3 ऑर्डर की आएगी, ओके। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, देखो इस रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से करोगे यू गेट 0 0 0। दिस रो 2 की मल्टीप्लाई करोगे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से यू गेट 1 5 7, और रो 3 की मल्टीप्लाई करोगे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से यू गेट 2 10 एंड 14, ओके। अब क्या चाहिए यहाँ पे, ए बी होल ट्रांसपोज चाहिए, दैट मीन्स ए बी का ट्रांसपोज चाहिए। तो इस रो 1 रो 2 रो 3 को आप कन्वर्ट कर दीजिए कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3 से एंड यू गेट ए बी होल ट्रांसपोज, ओके। राइट हैंड साइड में हमें क्या निकालना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज सबसे पहले निकालते हैं, ये रो 1 कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम 1 में, ये कॉलम 1 कन्वर्ट हो जाएगा रो 1 में, ओके। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दो, मल्टीप्लाई करोगे आप इस रो 1 की मल्टीप्लाई करोगे कॉलम 1 से यू गेट 0, रो 1 की मल्टीप्लाई करोगे कॉलम 2 और कॉलम 3 से यू गेट 1 एंड 2, रो 2 की मल्टीप्लाई करोगे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से यू गेट 0 5 10, और रो 3 की मल्टीप्लाई करोगे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से यू गेट 0 7 14, विच इज इक्वल टू ए बी होल ट्रांसपोज, ओके। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड, वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। So move on to the question number 6. This is the second part of question number 6. A matrix given है 2x2 order की, okay, sin alpha cos alpha minus cos alpha sin alpha, then verify that A transpose A is equals to identity, okay। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, A transpose निकालेंगे, this row 1 and row 2 converted into the column 1 and column 2 into A matrix as it is, okay। अब matrix multiplication करना है, row 1 की मल्टीप्लाई आप करोगे column 1 और column 2 से you get this and this, रो 2 की मल्टीप्लाई करोगे आप रो कॉलम 1 और कॉलम 2 के साथ यू गेट दिस एंड दिस, ओके। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 0, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाली एंट्री भी क्या हो जाएगी 0, एंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1, एंड हेयर ऑल्सो cos square alpha plus sin square alpha is equals to 1. This is the identity matrix of 2x2 order. This is equal to the right hand side, hence proof we get the required result. So move on to the question number 7. Show that matrix A matrix given है 3x3 order की 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 is a symmetric matrix. Okay, symmetric matrix के लिए क्या प्रॉपर्टी थी कि A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज। तो सबसे पहले देखो A मैट्रिक्स हमें गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, A ट्रांसपोज। तो दिस रो 1 रो 2 एंड रो 3 कन्वर्टेड इनटू द कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3, ओके। और देखो A मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू A डैश आ रही है, दैट मीन्स A ट्रांसपोज आ रही है, हैंस इट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। This is the second part of question number 7. Show that the matrix this is 3x3 order is a skew symmetric matrix. So skew symmetric matrix के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, A is equals to A ट्रांसपोज is equals to माइनस ऑफ A, ओके। ये प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले हमें देखो A मैट्रिक्स गिवन है, A ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, दिस रो 1 रो 2 एंड रो 3 कन्वर्टेड इनटू द कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3, ओके। देखो ये 0 1 -1 0 1 -1 यहाँ पे आ गया, कॉलम 1 बन गया, -1 0 1, ये रो 2 कन्वर्ट हो गई -1
0 1 में, कॉलम 2 में, और ऐसे ही सेम रो 3 कन्वर्ट हो गई कॉलम 3 में. दिस इज़ ए ट्रांसपोज. ओके, अब ए ट्रांसपोज में से अगर हम माइनस की मल्टीप्लाई कर दें या माइनस कॉमन ले लें तो वी गेट, देखो 0, माइनस कॉमन ले लेंगे या माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये तो 0 एज इट इज़ रहेगा, नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0. ओके, और ये किसके इक्वल आ रहा है, देखो मैट्रिक्स ए के इक्वल आ रहा है ना, तो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए. तो ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए. ये क्या है, इससे क्या पता चला कि मैट्रिक्स ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस प्रूफ वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट. I hope you guys like this. Then press the like button, share with someone, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.